ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੰਬਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਦਰਜਾਏ ਹਰਾਰਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਕੰਬਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਦਰਜਾਏ ਹਰਾਰਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਬਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਆਇਆ ਔਰ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਭੂਕੰਪ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਕੰਬਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR हर थां ते भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। तो भूचाल के झटके महसूस किए गए ने और इस वेले की वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। पूरे उत्तर भारत दे विच भूचाल के झटके महसूस किए गए ने। जिस तो बाद लोग अपने घरों तो बाहर आए ने, अपने दफ्तरों तो बाहर आए ने। जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है, इसका केंद्र सी नेपाल। दर्जा ए हरारत जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है 4.6। दर्जा ए हरारत और तस्वीरां जिहड़ियां सामने आईयां ने भूचाल के झटके महसूस किए गए ने पूरे उत्तर भारत दे विच। और पूरे उत्तर भारत दे विच क्यों लोग घरों तो बाहर निकले, इन्हां तस्वीरां तो बाद जदों घरां दे विच छत दे नाल लगियां होईयां लाइटां हिलण लग जाण, पखे अपने आप हिलन लग जान या इस तरह के जोड़े सजावटी समान होंगे ने अपने आप हिलन लग जान तो फिर लोग डर दे मारे फिर बाहर आते हैं, घरों तो बाहर आते हैं। और मन्ने जाता है कि भूचाल के झटके लग रहे हैं और भूचाल के झटकों की दर्जा ए हरारत इस वे अपडेट जो सामने आ रहा है, लगातार अपडेट हो रही है खबर और तुहानूं दसदी है कि 6.2 दर्जा ए हरारत 6.2 नेपाल दे विच तकरीबन 2:30 बजे के करीब झटका महसूस किया गया सी, जिथे इस भूचाल का केंद्र है। नेपाल दे विच इस भूचाल का केंद्र है और इसे करके पूरे उत्तर भारत दे विच इसका वड्डा असर देखने को मिला। धरती की हेठां जिहड़ी वख-वख प्लेट्स ने, धरती दीयां परतां ने, उन्हां दी हलचल की वजह करके ये झटके लगते हैं। और उत्तर भारत की गल करिए तां सब तो ज्यादा नाजुक इलाके विच उत्तर भारत नूं मन्निया जाता है। यानी उत्तर भारत का इलाका एक अजिहा इलाका है जिथे भूचाल आ सकते हैं। संभावी इलाका धरती के अंदर कुल 7 प्लेटां ने ते ये प्लेटां लगातार चलदियां रहंदियां ने ते जिथे आपस दे विच टकराउंदियां ने उन्हां नूं फॉल्ट जोन कहा जाता है। और फॉल्ट जोन दे विच जदों प्लेटां टकराउंदियां ने तां ये ऊर्जा बाहर निकलण दी कोशिश करती है और जिहड़ी ऊर्जा बाहर निकलती है उही भूचाल बन के सामने आती है। भूचाल के झटके उसनूं ही मन्निया जाता है। 2:51 से महसूस किए गए झटके नेपाल के भूचाल का केंद्र है। रिक्टर स्केल से भूचाल की तीव्रता 6.2 मापी गई है। दर्जा ए हरारत 6.2 का भूचाल पूरे उत्तर भारत के महसूस किया गया है। दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सारे ही इलाकों में तकरीबन एक जिहियां तस्वीरां वेखण नूं मिलियां। लाइटां टंगियां हुई सी तां लाइटां हिलन लग पईयां, अगर पखे टंगे हुए सी तां पखे हिलन लग पे। भूचाल की तेजी की गल करिए 0 तो लैके 1.9 रिक्टर पैमाने से जो भूचाल आता है तो यह महसूस नहीं होता। सिर्फ सीजमोग्राफ के नाल इसका पता लाया जा सकता है। 2 तो 2.9 होने ते थोड़ी जी कंबन जी हैगी खांबा जोड़ा है धरती के होंदा है और 3 तो 3.9 तक एक झटका जोर का लग सकता है। 4 तो 4.9 की तेजी जिथे होगी, जिथे इसका केंद्र होगा उत्थे वड्डा झटका लग सकता है। कच्छ जिहड़ा हैगा वो टुट सकता है, खिड़कियां टुट सकदियां ने। 5 तो 5.9 की तेजी ते समान अते पक्खा हिलन लग जाता है। 6 तो 6.9 की तेजी होवे तो उपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है ते नींह जिहड़ी हैगी वो सरक सकती है। 7 तो 7.9 की तेजी ते इमारतां ढह ढेरी हो जांदियां ने और 8 तो 8.9 की तेजी ते
ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਜੇਕਰ सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था एक अपने हाउस टैक्स के लिए, तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी, तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ ना हो, तो मैं 1 सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे, मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है, तो उनको भी फील हुआ और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही टेबल पे, तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए। क्या नाम है आपका? पंकज। क्या फील हुआ था, क्या हुआ? मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है। फिर वो मेरे को पता लगा कि ना कि भूकंप से ऐसे आ रहा है, अंदर से वो फील हुआ। तो मैंने फिर सभी कमरे वाले को बोला कि मैं यहाँ से चलो कि कुछ सेकंड तक अर्थक्वेक ही आ रहा है वो। ये थे कम से कम भी 3.2 के करीब महसूस हुआ था जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। फिर मैं काम कर रहा था बैठ के, हल्का सा झटका महसूस हुआ तो हम लोग नीचे आ गए। अच्छा, कितने लोग ऑफिस में रहे होंगे? हम 8-9 लोग थे यहाँ पे। सभी लोग बाहर आ गए? सब लोग बाहर आ गए। कुछ डर लगा? डर लगा तभी आए, क्या कहते हैं भाई, भागो कुछ भी हो सकता है। अपना नाम बता दीजिए। मैं नेहा शुक्ला। नेहा जी, क्या लगा, कहाँ थी आप, क्या कर रही थी, क्या? मैं बस ऑफिस में बैठी थी और नॉर्मली जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, टेबल क्योंकि मेरे पैर पे टच कर रही थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कि कुछ वाइब्रेट हुई है। तो वो रिकॉल किया 2015-16 वाला जब आया था 25 अप्रैल को, तो तुरंत बस बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। मतलब अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं सोच के थोड़ा। कितने लोग रहे होंगे साथ में आप? नहीं, मैं अकेली थी केबिन में। जी, मैं तो आप अकेली डर थी। गई एकदम से? हाँ, मैं बहुत डरी। मेरे अभी भी, मैं आप छूइए मुझे तो मैं हल्का कांप रही हूँ, मुझे क्योंकि पुराना वाला रिकॉल कर लिया था मैंने। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਪਲੇਟਸ ਜੇਕਰ ਹਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ नुकसान होता है। पानी निकालना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला, तो मतलब मैंने गिलास वगैरह रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। कौन सा इलाका है ये खुरेजी खास, किस जगह पे पड़ता है? ये कृष्णनगर के पास, दिल्ली इक्यावन। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੜਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਸੱਤ ਪਲੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ लगातार मूव करदियां ने और जदों एक दूजे नाल टकरांदियां ने तो फिर भूचाल आंदा है। वॉल में तो वहाँ से गिरने की कुछ आवाज़ें आ रही जैसे सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है, और उसके बाद हमें बिल्डिंग के भी हिलने का वो हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले हैं। कौन से फ्लोर पर भूकंप आया? हम 5th फ्लोर पर हैं, तो उसी वक्त भूकंप हमने महसूस किया। फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि जल्दी से बाहर जाओ, भूकंप आ रहा है। मैम, कितना तेज आपको भूकंप लगा, क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा, और पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। तो आप लोग लिफ्ट से नीचे आए? फिर हम नीचे आए, नहीं चेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आए हम। तो लोग प्रिकॉशन, सावधानियां वरते ने। स्टेयर्स तो थल्ले उतरे लोग ਜਿਹੜੇ टॉप फ्लोर ਤੇ ਸੀ। ਲਿਫਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਫਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ, ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। तो भूचाल के झटकों के नाल पूरा उत्तर भारत कंब उठा। नेपाल दे विच इसका सेंटर सी और जिहड़ी तेजी है 6.2 मापी गई है। जमीन तो 5 किलोमीटर हेठा इसका केंद्र है। इस तो पहला 2:25 से नेपाल दे विच भूचाल आया सी जिसकी तेजी। और मैं IDFC फर्स्ट बैंक बिजनेस लोन का डिपार्टमेंट है हमारा इसी बिल्डिंग में, होम स्क्वायर में। मैं यहाँ मैनेजमेंट टीम से ही हूँ, टीम लीडर। अभी मतलब काफ़ी टाइम भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब महसूस हुआ है। मैं अपने केबिन में बैठा हुआ था, हमारे मैनेजर साहब भी बैठे हुए थे, और कुर्सी इस तरीके से बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हिली है। मैंने अपने मैनेजर साहब से कहा कि सर ये क्या हिली है कुर्सी? कहने लगे हाँ भूकंप है। तो हमने मतलब बहुत तेज़ था, तुरंत हमने कहा कि सभी बाहर निकलिए, और यहाँ से निकलना सबसे पहले प्राथमिकता हमारी मतलब यहाँ से निकलना है। आप बाहर निकलिए, हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। इस बिल्डिंग से बाहर निकले हम, तो मतलब काफ़ी तेज़ भूकंप था और पहली बार हमें लगा ये, तो बहुत तेज़ भूकंप था सर। थैंक यू।